Assalamu alaikum dear students. Today we are to discuss note making. तो इस सिलसिले में हम देखेंगे कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है और ये आपके क्लास 11th और 12th में ये सवालात पूछे जाते हैं। आई होप कि आज के लेसन को आप अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, ताकि जो ही आप इस पर गौर खोज करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में तो आपकी समझ में ये अच्छी तरह आएगा। तो सीधे तौर जाते हैं व्हाट इज़ नोट मेकिंग। दिस इज़ आवर टॉपिक, नोट मेकिंग। सो प्यारे बच्चों, ये नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग, एज आई हैव रिटन ओवर हियर एंड आई हैव ट्राइड टू डिफाइन इट इन माई वे, it is a brief record of writing kept for future reference. Notes need to be made in a way that they can be reproduced anytime in the desired manner. तो यूँ कह सकते हैं कि महज चंद अल्फाज को नोट करके रखना, ताकि जब कभी भी कोई तकरीर करनी हो या फिर इम्तिहान में कोई मज़मून लिखना हो तो उनसे भरपूर काम लिया जा सके। सो इट इज़ ब्रीफ रिकॉर्ड, मुख्तसर जो हमारे पास होता है हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, मुख्तसर तौर हम नोट करके रखते हैं इन रिटन फॉर्मेट में, ताकि आने वाले वक्त में ये हमें बतौर रेफरेंस काम आ सके। तो इस तरह हमें बनानी चाहिए ताकि जब भी हमें फिर से इससे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट मीन्स व्हेन वी नीड टू प्रोड्यूस अ कंपोजिशन और अ स्पीच आउट ऑफ दीज नोट्स, अ फ्यू words and phrases, it must be written in such a way that it must be capable of giving us that much of material which we need in examination or which we need when we have to deliver a speech. So this way we have defined it. It is a brief record of writing kept for future reference, and then notes need to be made in a way that they can be reproduced anytime in the desired manner. तो आगे बढ़ते हैं. What is the importance of notes? So there must be an importance of it. हमारी importance है क्या? What is importance of notes? इस पर थोड़ा गौर करेंगे. Notes help us, ये हमारी मदद करते हैं in keeping the information handy, in recollecting past events, in delivering speeches, in writing essays. तो चार तरह से हम मदद ले सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकती है इसके फ़वाइदे। तो चार जो हमने यहाँ जिक्र किए कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हाथों हाथ रखी जाए। इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हाथों हाथ रखी जा सके, इसलिए हम नोट बनाते हैं। देन इन रिकलेक्टिंग पास्ट इवेंट्स, गुजरे हुए अहम वाक़यात जो अच्छी तरह से हमें याद नहीं रहते को आसानी के साथ याद रखा जाए, इसके लिए हम अपनी डायरी पर नोट करके रखते हैं। देन इन डिलीवरिंग स्पीच, इनकी मदद से हम एक मौसर तकरीर तैयार कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो उसे डिलीवर कर सकते हैं। देन इन राइटिंग एसेज, ये ज़रूरी है एक खूबसूरत मजमून डेवलप करने के लिए। सो नोट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी, in recollecting events, in delivering speeches, and then in writing essays. अब मसला ये है कि नोट्स को कैसे बनाया जा सके, हाउ टू डेवलप नोट्स, ये बहुत बड़ा मसला है, यही हमें आज सीखना। सो फॉर दिस वी नीड टू गो थ्रू सर्टन प्रोसीजर्स. फर्स्ट इज रीड द गिवन पैसेज माइन्यूटली. We have to read the passage, we have to focus upon it, we have to read it line by line. बाइन सतूर ये हमें अच्छी तरह से
پڑھنا ہے. یعنی پہلے پورے اقتباس کو غور سے پڑھو. دین انڈر لائن دا کی سینٹینسز. کی یعنی اہم، جو اس کے اہم ترین جملے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ خط کشیدہ کریں گے. دین آئیڈینٹیفائی دی مین آئیڈیا. جو مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے. We have to see what is the main idea behind this passage. We have to find out that, because it will help us developing the title. Then identify the supporting ideas. امدادی خیال جو ہمارے پاس ہے ان کی بھی باضابطہ پہچان کرنی ہے. Then arrange the pointers in a logical order. منطقی طور ہمیں یعنی کڑیوں کو جوڑنا ہوگا. ارینج دا پوائنٹس ان اے لاجیکل آرڈر. تمام خیالات کو منطقی طور باہم جوڑنا ہے. پہلے کیا، اس کے بعد کیا، کون سا پوائنٹ کس کے ساتھ فٹ بیٹھے گا، ان چیزوں کا ہمیں بغور یہ رکھنا ہے کہ کیا کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں ریڈ دا پیسیج مائنیوٹلی، ایک یہ کرنا ہے. انڈر لائن دا کی سینٹینسز، دوسری بات. آئیڈینٹیفائی دا مین آئیڈیا، دین آئیڈینٹیفائی دا سپورٹنگ آئیڈیا، اینڈ آفٹر دیٹ ارینجنگ دا پوائنٹس ان اے لاجیکل آرڈر. ہاں ایک بات ضرور، پانچویں اور چھٹی بھی ہم یاد ذہن میں اپنے طور رکھ سکتے ہیں. ذرا سوچو وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ ہے ہمیں ایک اسپیسیفک فارمیٹ دماغ میں رکھنا ہے. یوز a specific فارمیٹ. ہمیں اس کے لیے ایک مخصوص فارمیٹ چاہیے ہے. آگے بڑھتے. ناؤ فارمیٹ فار نوٹ میکنگ. کون سا فارمیٹ ہمارے لیے یہاں چلے گا؟ فارمیٹ فار نوٹ میکنگ. ہر فارمیٹ کی ایک حیت ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. جو نوٹ میکنگ کا ڈھانچہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آفٹر وی ہیو read the passage minutely, we have to fill the title. We have to write title ہمیں fill کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے پولوشن کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہم یہاں پولوشن لکھیں گے. پھر مین پوائنٹس ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں. فار ایگزامپل پھر ہم یہاں مین پوائنٹس میں لکھیں گے. فار ایگزامپل ہم کہیں لکھیں گے انوائرمنٹل پولوشن، پولوشن، یہ مثال دیتا ہوں میں. پھر سب پوائنٹس میں جو اس پولوشن میں آئیں گے شاید ہم لکھیں گے ایئر پولوشن، ایئر پولوشن. شاید ہم دوسرا لکھیں گے واٹر پولوشن. شاید ہم تیسرا لکھیں گے سوائل پولوشن یا پھر نوائز پولوشن. پھر دوسرا مین پوائنٹ آتا ہے، چلو ہم دوسرا جو ایئر پولوشن یا پھر واٹر پولوشن کو ہم الگ سے شاید اس پر بات کریں گے. پھر سبارڈینیٹ پوائنٹس کیسے آئیں گے کہ کس سے واٹر پولوشن ہوتی ہے. شاید ہم اس کے ذیل میں دیے گئے پیسیج سے کچھ اور انفارمیشن حاصل کرتے، جیسے throwing house refuse in rivers. اسی طرح ہم کچھ اور بھی یہاں لکھ سکتے ہیں. ڈریننگ واٹر in water bodies, rivers, streams, etc. یا throwing garbage, etc.
تو پیارے بچوں when we will be writing these main points we will be not writing the full sentences. So don't write full sentence. We'll be simply writing these ideas in phrases. For example, here हमने यहाँ लिखा environmental pollution, then air pollution, then water pollution. Sometimes we need a little bigger sentence. When we were discussing water pollution is caused by throwing house refuse in rivers, streams, etc. We are having we are having this sewage pipes and we are draining that much water in the rivers, streams. We are not writing full sentence. We are throwing garbages and other refusal in these वाटर बॉडीज. तो हम पूरे जुमले नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे फ्रेज की सूरत में. तो इस तरह हाँ, अगर हमारे पास कुछ लंबे जुमले हैं तो लंबे जुमले जो होंगे तो उसका हम क्या करते हैं, उससे हम छोटे बनाते हैं. और तो कुछ अभी कभी कभार हम एब्रीवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जगह नहीं यहाँ इस फॉर्मेट में, हम पोल्यूशन के बदले फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन के बदले अगर हम वहाँ पोल लिखेंगे या वाटर के बदले ऐसे H2O लिखेंगे तो नीचे हमें एक की बनानी पड़ता है कि हमने किसके बदले क्या लिखा है. इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बदले EP लिखेंगे तो यह भी यहाँ हमारे लिए इसकी भी इजाज़त है. चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं अब. So this is a practical example. Let us read it first, then let us see how can we develop it into this note making process. So we are having here a passage. COVID-19 is the disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2. WHO, the World Health Organization, first learned of this new virus on 31st December 2019 following a report of a cluster of cases of various pneumonia in Wuhan, People's Republic of China. तो यहाँ कोरोना वायरस की बात होती है. दिसंबर 2019 में ये वुहान एक शहर है चीन का, वहाँ फैल गई सबसे पहले. तो इन लाइन्स को हम अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें बाद में टॉपिक डेवलप करने में मदद मिले. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स of COVID-19 are fever, dry cough, fatigue. Then other symptoms that are less common and may affect some patients include other symptoms are loss of taste and smell, nasal congestion, conjunctivitis also known as red eyes, conjunctivitis, sore throat, then headache, muscle or joint pain, different types of skin rash, इसी तरह ये डायरिया है वगैरह वगैरह. सिम्टम्स ऑफ सीवियर मीन सीवियर सिम्टम्स में कौन से आते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, कन्फ्यूजन, persistent pain in chest, high temperature. तो जब हमें पहले बच्चों इस पैसेज का ये बनाना होगा एक नोट मेकिंग प्रोसेस, तो हम यहाँ देखेंगे इसका टाइटल क्या सिलेक्ट करेंगे. शायद आप भी सोचेंगे टाइटल इसका रहेगा कोविड-19. शायद आप फिर जो इसके मेन आइडियाज़ लिखेंगे शायद आप लिखेंगे ये कि पहली बार कहाँ ये डिटेक्ट हुआ, ये पहला मेन आइडिया. फिर दूसरा कॉमन सिम्टम्स इसके क्या थे, शायद ये हम पिक करेंगे, ये पिक करेंगे, ये पिक करेंगे. फिर एक और मेन पॉइंट शायद अदर सिम्टम्स लिखेंगे, इसके लिए हम ये पिक करेंगे, तो शायद ये पिक करेंगे, ये पिक करेंगे, ये पिक करेंगे. तो हमारे पास मेन पॉइंट्स है. फिर एक और मेन पॉइंट्स ये होगा, इसके सबऑर्डिनेट आइडिया आएंगे, ये हम पिक करेंगे, ये पिक करेंगे, ये पिक करेंगे और ये पिक करेंगे. तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इससे
बना सकते हैं। चलो देखते हैं हमने क्या क्या पिक किया है। देखिए यहाँ हमारे पास अब नोट बन गया, ये हमारा नोट है। यहाँ थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे। सो दिस इज आवर नोट मेकिंग फॉर्मेट। टाइटल इसका है कोविड-19, देन मेन पॉइंट फर्स्ट डिटेक्टेड इन वुहान इन 2019, फिर दूसरा मेन पॉइंट कॉमन सिम्टम्स, फीवर, ड्राई कफ, फिटीक, देन तीसरा मेन पॉइंट अदर सिम्टम्स, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सोर थ्रोट, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन। चौथा मेन पॉइंट सीवियर सिम्टम्स, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, पर्सेंट पेन इन चेस्ट, हाई टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों इस जो हमारे पास ये एक पैसेज था जो अभी हमने पढ़ा, तो इसको हमने नोट मेकिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा और हम देखते हैं कि इसका कितना खूबसूरत नोट हमारे पास आ गया। वो ये है कि जो हमारे पास नोट मेकिंग है तो बहुत आसान है। फिर एक बार दोहराएंगे, पहले हमें क्या करना होता है, अच्छी तरह से पैसेज पढ़ना होता है। फिर जो हमारे पास होता है टाइटल किसे लिखेंगे, की सेंटेंस को टाइटल बनाएंगे, फिर मेन आइडियाज़ लिखेंगे, फिर दूसरा मेन आइडिया लिखेंगे। जिन जिन आइडियाज़ के सब ऑर्डिनेट आइडिया होंगे तो वो हम यहाँ नोट करेंगे। जो मेन आइडियाज़ होंगे वो हम लेटर्स, फिगर्स, डिजिट्स में लिखेंगे। सब ऑर्डिनेट तो फिर हम उसके बाद लेटर्स में लिखेंगे। अगर सब ऑर्डिनेट के भी ज़ेली पॉइंट्स होंगे तो हम रोमन दिस डिजिट्स में हम वो लिख सकते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने आज का जो लेसन है ये हमने मुकम्मल किया और हमारा आज का लेसन था हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेसन है ये समझ आया होगा। तो आपने ज़रूर इस पर गौर किया होगा ये कैसे हम बनाते हैं। तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज का लेसन आपको कैसा लगा। तो दीजिए आज के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।